commercial organization. This is the part 1 of the video. Next topic will be continued in the second part. Let's start with our video. The content for our today's video are meaning of stakeholder, types of stakeholder, shareholder, employer and employees. Meaning of stakeholder. Do you know, children, what is the meaning of stakeholder? And what is the meaning of term stake? The term stake means interest or expected benefit. The stakeholder word has derived from the word stake, that means interest or expected benefit. A stakeholder means all those individuals, group and institution which have a stake in functioning and performing of commercial organization. Now here, what is the meaning of stake in functioning and performance of commercial organization? It means institution which have interest in functioning and performance of a commercial organization. The stakeholder can be anyone, my dear children, any person, organization, social group or society at large that help at a stake in the business. Stakeholder can be internal or external to the business. A stake is a vital interest in the business or its activity. It can include ownership, property, interest, legal interest and moral rights. Legal obligation may be to pay wages or to earn contract. Now, I will explain the same thing, meaning of stakeholder, in Hindi as well. The term stake means interest or expected benefit. स्टेक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्टेक होल्डर वर्ड आया कहाँ से? तो स्टेक होल्डर वर्ड स्टेक वर्ड से आया है. स्टेक का मीनिंग होता है इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट. किसी का कोई काम करने में इंटरेस्ट हो, चाहे वो एक फर्म हो, पर्सन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, उसको एक कंपनी में इंटरेस्ट हो. कैसा इंटरेस्ट हो? वहाँ का फंक्शनिंग में, वहाँ का परफॉर्मेंस में. कोई भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक स्टेक होल्डर को उसके उस कंपनी के और काम में इंटरेस्ट हो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है. इट मे बी एनी पर्सन, कोई भी फर्म पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोशल ग्रुप और सोसाइटी, कोई भी हो सकता है. स्टेक होल्डर का मतलब है ऑल दोज इंडिविजुअल, वो सारे इंडिविजुअल, ग्रुप्स या फिर इंस्टीट्यूशन which have, जिनको इंटरेस्ट है, which have a stake, which means interest, जिनको इंटरेस्ट है किस चीज में? in the functioning and performance. फंक्शन में और परफॉर्मेंस में. किसका फंक्शन और परफॉर्मेंस में? ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी इंसान, कंपनी, ग्रुप, सोशल ग्रुप, सोसाइटी, कोई भी जिसको एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन एंड परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन बिजनेस. स्टेक होल्डर्स का क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर ऑन अ बिजनेस? सो
It can be positive impact or it can be negative impact. स्टेक होल्डर बिजनेस के लिए अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं. उनका इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, साथ ही साथ बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट. अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है. Stakeholder provide the necessary resources and support to the business like finance, labor, material, machinery. जो stakeholder होते हैं सारे necessary resources देते हैं. necessary resources जैसे कभी कोई कंपनी को फाइनेंस का ज़रूरत हुआ, लेबर का ज़रूरत हुए, रॉ मटेरियल, मशीनरी, कोई भी कंपनी को ये सब चीज़ की ज़रूरतें होती ही हैं. तो वो सब कौन प्रोवाइड कराता है? स्टेक होल्डर्स. ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कराते हैं? स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड कराते हैं. तो ये हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स का बिजनेस पे, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी पे. इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर ऑन बिजनेस. Positive impact is stakeholder provide the necessary resources and support to the business like finance, labor, raw material, machinery. Now let's come to negative impact. What are the negative impact? Shareholder may block or interrupt the functioning of an enterprise when their expectations are disregarded. जैसे हम लोग को पता है हर कॉइन का टू फेस होता है. इन द सेम वे स्टेक होल्डर का भी है. पॉजिटिव फेस भी है, नेगेटिव फेस भी है. पॉजिटिव क्या है? वो लोग बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी ये सब प्रोवाइड करवाते हैं. लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? स्टेक होल्डर मे ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग of an enterprise when their expectations are disregarded. उनका कंपनी की तरफ से भी कोई एक्सपेक्टेशंस होता है. अगर कंपनी वो स्टेक होल्डर्स के वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो स्टेक होल्डर एक कंपनी का जो स्मूथली रन हो रहा है कंपनी, उन लोग का फंक्शनिंग को वहीं पे ब्लॉक कर सकता है या रोक सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक कंपनी को स्मूथली रन करने में. नाउ टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. वन इज इंटरनल and other is external. In this video we will discuss only about the internal stakeholders. Who are the internal stakeholders? Shareholders, employees, employer are the internal stakeholder. And who are the external stakeholder? Supplier, creditor, government, society. So my dear children, you have to learn the meanings of shareholder, employees, employer, supplier, creditor, government and society. In this video we will only discuss about internal stakeholder, and if you want part 2 of this video, do comment below and let me know you want the second part where we will discuss the rest of the topics like external stakeholders, difference between internal and external stakeholders, expectations of employers and so on. So let's start with our internal stakeholder. The first come is shareholders. Now who are the shareholders? Shareholders कौन है? What are internal stakeholders? Internal stakeholders क्या होता है? Stakeholders who are involved in business firm from within the organization are known as stakeholder. Internal stakeholders क्या होते हैं? जो business में involved हैं उनको बोलते हैं internal stakeholders. 3 types के होते हैं internal stakeholders. कौन कौन से? Shareholders, employees
and employer. There are three types of stakeholders. There are three types of internal stakeholders. They are shareholders, employees, and employer. Now let's discuss one by one. Who are the shareholders of an organization or company? Listen it very carefully. Shareholders. A shareholder is a person, company, or institution that owns at least one share of a company stock to make them partial owner. Shareholders कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं दैट ओन्स, जो एटलीस्ट एक शेयर, पूरे कंपनी का एटलीस्ट एक शेयर उनके पास होगा. दे प्रोवाइड कैपिटल टू बिजनेस. वो क्या करते हैं? कैपिटल. एज वी नो, टू रन अ बिजनेस कैपिटल इज नेसेसरी. Without capital, without fund, without money, we cannot do anything in business. So, as we know, so shareholder provide capital to business under calculated risk. तो shareholder क्या करते हैं? बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, फंड्स देते हैं बिजनेस को, पैसा देते हैं बिजनेस को, जिससे डे टू डे एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, सब कुछ कैरी ऑन होता है बिजनेस का. एंड व्हाट डज दिस अंडर कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स? दिस अंडर कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स दे हैव टू बियर सम अमाउंट ऑफ रिस्क. वो पैसा तो देते हैं लेकिन उनको कुछ रिस्क बियर भी करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को. तो शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स वो लोग हैं, शेयर होल्डर्स पर्सन हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जिनके पास एटलीस्ट एक शेयर होगा कंपनी का. वो क्या करते हैं? बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं अंडर कैलकुलेटेड रिस्क. अंडर कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अगर वो 10% शेयर खरीदते हैं किसी बिजनेस से, तो अगर उस ईयर बिजनेस को लॉस हुआ है तो टोटल रिस्क लॉस का 10% लॉस उनको भी बियर करना पड़ेगा. अगर प्रॉफिट होता है तो उनको उस परसेंटेज पे प्रॉफिट मिलेगा. परसेंट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर दे हैव और दे परचेज्ड. परसेंटेज डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ शेयर उन्होंने खरीदा है या फिर वो खरीदने वाले हैं. नाउ लेट अस लर्न विथ सम डायग्राम. सी, द फर्स्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ शेयर होल्डर. इट कैन बी अ पर्सन हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं. और जैसे कि हमने पढ़ा है, हु आर द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स हु अर्न एटलीस्ट वन शेयर ऑफ द कंपनी स्टॉक. पूरा कंपनी का एटलीस्ट एक शेयर अर्न करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स. अब देखते हैं एक्चुअली शेयर होल्डर फंक्शन कैसे करते हैं. तो सी, लेफ्ट हैंड साइड में we have drawn a shareholder and in right hand side we have drawn any random company, that is XYZ company. shareholders क्या कर रहे हैं? फंड्स दे रहे हैं या मनी दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? कंपनी को दे रहे हैं. किस लिए दे रहे हैं? टू रन अ बिजनेस. दे आर प्रोवाइडिंग फंड एंड मनी टू द बिजनेस, टू कंपनी टू रन देयर बिजनेस स्मूथली. एज वी नो, okay, so in short we can say that shareholders कंपनी को फंड या पैसा देते हैं. दे प्रोवाइड फंड और मनी टू कंपनी. बाय दे प्रोवाइड फंड और मनी टू रन द बिजनेस और द कंपनी स्मूथली. इन रिटर्न दे गेट शेयर्स. उसके बदले में उनको शेयर्स मिलता है. एंड लेट्स लर्न फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट शेयर होल्डर्स. अभी थोड़ा और हम लोग शेयर होल्डर्स के बारे में जान लेते हैं. शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर डेप्ट ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर कोई भी डेप्ट
कंपनी का कोई भी डेप्ट के लिए लायबल नहीं होते हैं। पर्सनली वो लोग कोई भी डेप्ट के लिए लायबल नहीं होते हैं। दे कैन वोट ऑन अ कंपनी मैटर इंक्लूडिंग मर्जर, कोई भी कंपनी का मैटर होगा, दे हैव द राइट टू वोट, उनके पास वोट करने का राइट है। दे कैन ट्रेड देयर शेयर्स मेकिंग अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जो शेयर्स खरीदा था कंपनी का वो किसी और इंसान को भी बेच सकते हैं। दे कैन इंस्पेक्ट द कंपनी रिकॉर्ड टू चेक इफ देयर इज एनी मिसलीड्स और मिसडीड्स, वो जब चाहें कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कोई मिसडीड हुआ है या नहीं। इफ द कंपनी लिक्विडेट्स ऑन सच ओकेशन द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर विल बी मेड फर्स्ट, अगर कभी कंपनी लॉस में लर्न कर रहा है, कंपनी शट डाउन होने वाला है, बंद होने वाला है, तो सबसे पहला पेमेंट मिलेगा वो है क्रेडिटर्स को, एंड सबसे एंड में कब में पेमेंट मिलेगा शेयर होल्डर्स को। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Employees. Who are employees? An employee is an individual who was hired by the employer to do a specific job. Employees may be any person who are hired by the employer to do a specific job. Employees वो लोग होते हैं जिनको मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है कोई काम करने के लिए। दे प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल और मेंटल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्कूल में हो, आपका स्कूल है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपके प्रिंसिपल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट जो भी हैं, ओनर है आपके स्कूल के, वो क्या करेंगे, टीचर्स अपॉइंट करते हैं। तो टीचर्स क्या हुए, एम्प्लॉयज हुए। टीचर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, जो भी फिजिकल एफर्ट होता है, कॉपी करेक्शन, मेंटल एफर्ट पढ़ाने का एफर्ट, तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो भी है वो देते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू एम्प्लॉयर। हु आर एम्प्लॉयर? जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं उनको एम्प्लॉयर्स बोलते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, काम पे रखते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वेजेस देते हैं, ऑफर वेजेस और सैलरी, वेजेस देते हैं या फिर सैलरी देते हैं। किसको देते हैं, वर्कर्स को देते हैं, जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है। इन एक्सचेंज ऑफ वर्कर्स वर्क और लेबर, जो काम वो लोग कर रहे हैं उसके इन रिटर्न में क्या मिलता है, उनको कुछ वेजेस मिलता है या सैलरी मिलता है जो एम्प्लॉयर्स देते हैं।